السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں افشین قریشی اور میں ہوں سحر فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سندھ کابینہ کے ارکان نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کابینہ کے ارکان سے حلف لیا۔ گورنر ہاؤس میں سندھ کابینہ کی تقریب حلف برداری منعقد کی گئی، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ بھی شریک ہوئے۔ عذرا پیچہو، شرجیل انعام میمن، سعید غنی، سردار شاہ نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا۔ ضیاء الانجار، جام خان چورو، ناصر حسین شاہ بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل۔ علی حسن زرداری، سردار بخش مہر اور ذوالفقار شاہ نے بھی حلف اٹھایا۔ بابل بھائیو اور احسان مزاری نے بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ بحیثیت وزیر حکومت سندھ میری ذمہ داریوں کی کما حق انجام دہی کے لیے ضروری ہوگا۔ یا جس کی وزیر اعلیٰ نے خاص طور پر اجازت دی ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو، میری رہنمائی فرمائے۔ آمین۔ نئے وزیر خزانہ نے گرین سگنل دے دیا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات 15 مارچ سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف وفد کل پاکستان پہنچ رہا ہے۔ فریقین کے درمیان نئے قرض پروگرام کے ساتھ موجود قرض پروگرام کی آخری قسط سے متعلق بھی بات ہوگی۔ ملکی معیشت سنبھالنے کا مشن، منتخب حکومت ان ایکشن۔ آئی ایم ایف کا پروگرام اولین معاشی ترجیح میں شامل۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف سے مذاکرات 15 مارچ سے شروع ہونے کا امکان ہے، جس میں نئے قرض پروگرام کے ساتھ موجودہ قرض پروگرام کی آخری قسط سے متعلق بھی بات ہوگی۔ موجودہ قرض پروگرام کے لیے پاکستان نے تمام اہداف حاصل کیے۔ آخری قسط میں پاکستان کو $1.1 ارب ملنے کا امکان ہے۔ نیا قرض پروگرام 6 سے 8 ارب ڈالر کا ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب آئی ایم ایف وفد اقتصادی جائزہ مذاکرات کے لیے کل پاکستان پہنچ رہا ہے، جو 14 سے 18 مارچ تک معاشی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کرے گا۔ مذاکرات میں وزارت خزانہ، وزارت توانائی، ایف بی آر حکام، اسٹیٹ بینک حکام، پلاننگ کمیشن اور پیٹرولیم ڈویژن شامل ہوں گے۔ قومی اور بین الاقوامی بینکوں کے بڑے انتظامی عہدوں کا وسیع تجربہ، شعبہ مالیات میں مہارت، غیر ملکی معاشی جریدے بھی پاکستانی وزیر خزانہ کے گن گانے لگے۔ محمد اورنگزیب کو عہدے کے لیے موضوع انتخاب قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں امریکی بینک سے کیریئر کا آغاز، نیو یارک میں ڈچ بینک جوائن کیا، پھر وقت گزرتا رہا، پروفائل بڑھتا رہا، یہاں تک کہ 2014 میں گورنر اسٹیٹ بینک کی پیشکش بھی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ بلومبرگ محمد اورنگزیب کا وزیر خزانہ بننا نیک شگون قرار دے رہا ہے۔ امریکی جریدے کے مطابق یہ وزیر خزانہ پاکستان کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات میں محمد اورنگزیب کا کردار کلیدی ہوگا۔ تعیناتی سرمایہ کاروں کے لیے کشش کا سبب بنے گی۔ بلومبرگ نے پیشگوئی کی کہ اصلاحات کے لیے وزیر خزانہ جو ضروری ہوا کریں گے۔ وہ ٹیکس کی بنیاد وسیع کرنے کے لیے ریئل اسٹیٹ اور ریٹیلرز پر ٹیکس عائد کرنا چاہتے ہیں۔ محمد اورنگزیب نجکاری کے عمل میں ایس آئی ایف سی کی معاونت بھی کریں گے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں بدترین مندی، ایک موقع پر 100 انڈیکس میں 1090 پوائنٹس کم ہو گیا، جبکہ ٹریڈنگ کے اختتام پر KSE 100 انڈیکس 953 پوائنٹس کمی کے ساتھ 64,801 پر موجود ہے۔ آج مارکیٹ میں 57 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ، جبکہ 253 کے حصص میں کمی واقع ہوئی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ٹھٹھا کے قریب کھلے سمندر میں کشتی ڈوبنے کا واقعہ، 3 مزید لاپتہ ماہی گیروں کی لاشیں مل گئی ہیں۔ مجموعی طور پر ملنے والی لاشوں کی تعداد 13 ہو گئی۔ ایک مزید لاپتہ ماہی گیر کی تلاش جاری ہے۔ 8 روز سے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اس بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹھٹھا کے قریب کھلے سمندر میں کشتی ڈوبنے کا واقعہ، 3 مزید لاپتہ ماہی گیروں کی لاشیں مل گئی ہیں۔ مجموعی طور پر ملنے والی لاشوں کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ ایک مزید لاپتہ ماہی گیر کی تلاش ہے۔ ٹھٹھا کے قریب کھلے سمندر میں کشتی ڈوبنے کا واقعہ رونما ہوا تھا۔ سحری کے لیے بیدار ہوئے مگر زندگی کی شام ہو گئی۔ ملتان میں گیس سلنڈر دھماکے نے 3 منزلہ عمارت زمین بوس کر دی۔ ملبہ 7 والے مکان پر گرا، جس سے 5 بچوں اور والدین کی جان گئی۔ واقعے میں مجموعی طور پر 9 افراد جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کمشنر سے رپورٹ طلب کر لی۔ اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ لمحوں میں قیامت گزر گئی، آشیانہ مقتل بن گیا۔ ملتان میں عمارت گرنے سے 2 خاندانوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔
हरम गेट महल्ला जवादिया में सहरी के वक्त किचन में गैस लीकेज से धमाका हुआ। धमाके से इमारत का एक हिस्सा 7 वाले कच्चे मकान पर गिरा, जिससे 5 बच्चों और वालिदैन की जान गई। रेस्क्यू अमला मौके पर पहुंचा और मलबे से लाशों और जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी अफसर के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट के रिस्पांस टाइम से रेस्क्यू 1122 मुल्तान की तमाम टीम वहां पहुंची और ऑपरेशन शुरू करवा दिया। शुरू में जिस घर पे मलबा गिरा था उन 7 अफराद को वहां से निकाला गया। अनफॉर्चुनेटली वो सारे डेथ उनकी हो चुकी थी। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि सहरी के वक्त धमाके की आवाज सुनाई दी। उसके बाद फजा में मिट्टी और गर्द फैल गई। जब सिलेंडर फटा ना, हमें आवाज़ आई, हम भाग के आए, सबने देखा है तो ये बिल्डिंग की छत उनको बहुत सिलेंडर का धमाका हुआ और उस जो है ना ऊपर की जितनी बिल्डिंग है वो इनके ऊपर आ गिरी, इनके घर पे, और उससे जो है ना ये जानी नुकसान हुआ। इसमें जो है ना हमारी यानी कि पूरी फैमिली जो है वो उनकी डेथ हो गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कमिश्नर मुल्तान से रिपोर्ट तलब कर ली। कमिश्नर मरियम खान RPO सोहेल चौधरी के हमरा जाए हादसा पर पहुंची। RPO का कहना है कि वाक़ये के मुहर्रिकात की मुकम्मल इंक्वायरी और इतराफ़ की इमारतों का फिजिकल इंस्पेक्शन किया जाएगा। इब्तदाई तौर पर इमारत गिरने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। गफलत और लापरवाही जानों पर बनाए। रावलपिंडी में आज गैस लीकेज के 24 वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। 4 मुकामात पर आग लगी, 2 बच्चे जाँ बहक जबकि 9 अफराद झुलस गए। कोयटा में स्मंगली रोड और खरोटाबाद में गैस लीकेज के बायस धमाके हुए, खवातीन और बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी हो गए। होशियार खबरदार, गैस लीकेज खतरनाक। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में गैस लीकेज के 24 वाकयात। सहरी से अब तक 4 मकामात पर आग लगी, 2 बच्चे जाँ बहक, 9 अफराद झुलस गए। पहला वाकया भाबड़ा बाजार के इलाके में पेश आया, जिसमें माँ और 2 बच्चियां झुलस कर जख्मी हुई। 8 साला अरहम और 7 साला आयत फातिमा जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। रेस्क्यू टीम के मुताबिक कमरे में गैस जमा होने के बाद बिजली का स्विच ऑन करते ही धमाका हो गया। दूसरा वाकया आर्या मोहल्ले में पेश आया, जिसमें आग लगने से 5 अफराद झुलस गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा में भी गैस लीकेज के 2 धमाके रिपोर्ट हुए। संगली रोड पर घर में धमाके से मियां बीवी और 5 बच्चे झुलस गए। खरोटाबाद के उज़्बेक बाजार में भी धमाका हुआ, 3 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक दोनों वाकयात सहरी के वक्त हुए, मकानात को भी नुकसान पहुँचा। और अब सियासी मंजरनामे से खबर देंगे आपको। JUI पार्लिमानी वफ़द ने रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात की। मौलाना अब्दुल खबूर हैदरी ने कहा कि बलूचिस्तान में सेनेट की 3 नशस्तों के लिए पीपल्स पार्टी हमें सपोर्ट करेगी। बदले में हम सेनेट की नशस्त के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत करेंगे। यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि ताउन के लिए शुक्रगुजार हैं। पार्लियामेंट में JUI के मिलकर चलेंगे। आवाम के मसाइल के हल के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अच्छी पेशरफ्त है कि बलूचिस्तान में अगर हम तीनों जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे तो ये एक सियासी माहौल में एक अच्छी पेशरफ्त है। और इसी तरह हम चाहेंगे कि जब हमारे गिलानी साहब इलेक्शन लड़ेंगे तो उसमें भी हमारी कोशिश होगी कि हम उनका साथ दें, ताकि एक पार्लियामेंट में एक अच्छा सा माहौल बने। जो ये अंडरस्टैंडिंग हुई है विद इन द पार्लियामेंट, एक बहुत अच्छी मूव है कि हम पार्लियामेंट के ही चाहते हैं कि पार्लियामेंट में अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप हो, और उसके लिए हम दोनों एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक दूसरे को वोट करेंगे। तो उधर रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया कवरेज और बानी PTI से मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी PTI को गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से रखा गया है। मुलाकात पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। दहशतगर्दी का खतरा, बानी PTI से मुलाकात का दिन। अडियाला जेल में कैदियों की मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई। IG जेल खानाजात की जानिब से लिखे गए खत में अडियाला जेल के अंदर और बाहर दहशतगर्दी के वाकयात का खदशा जाहिर किया गया है। खत में कहा गया है कि दुश्मन मुल्क की हिमायत से कुछ ग्रुप्स हमले कर सकते हैं। सिक्योरिटी खदशे के पेश नज़र अडियाला जेल के कैदियों की मुलाकातें फौरी तौर पर रोक दी गई हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि ये बताया गया है कि 2 हफ्तों के लिए मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। कल तक हमारी मुलाकात मुमकिन बनाई जाए। ये किस मुज़म्मरात के नीचे उन पे ये पाबंदी लगाई गई है, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, इसकी तहकीकात का मुतालबा करते हैं और कल हर सूरत पार्टी लीडरशिप और वकला की मुलाकात का मुतालबा करते हैं
बाय ऑल मीन्स हमारा कल ये मुतालबा है कि हमारी कल मुलाकात हो जाए। रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी है। पुलिस ने अडियाला जेल के गेट नंबर 5 के बाहर मीडिया की गाड़ियों की पार्किंग पर बैरियर लगा दिए हैं। मीडिया टीम को जेल से 2 किलोमीटर दूर रहने की हिदायत। तारिक फातमी वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी मुक़र्रर। तक़र्रुर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से हुआ। तारिक फातमी का दर्जा वज़ीर मुमलिकत के बराबर होगा, ताहम उनका कलमदान ताहाल फैसला नहीं किया। काबीना डिवीज़न ने तारिक फातमी की तक़र्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुल्क की तारीख में पहली बार सिविलियन हुकूमत में सेनेट गैर फाल हो गया। 2018 में मुंतखब होने वाले 52 सेनेटर्स गुज़िश्ता रोज़ रिटायर हो गए। 52 रिटायर सेनेटर्स में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, डिप्टी चेयरमैन मिर्ज़ा आफरीदी, कायदे ऐवान इसहाक डार, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम और सेनेटर रज़ा रब्बानी भी शामिल हैं। ऐवान बाला गैर फाल, 52 सेनेटर मुद्दत पूरी करके रिटायर होने वाले सेनेटर्स में नून लीग के 13, पीपल्स पार्टी के 12, पीटीआई के 8, जमीयत उलमा इस्लाम, पीके मैप और नेशनल पार्टी के 2 अरकान शामिल हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 6, जमात इस्लामी, एमक्यूएम और मुस्लिम लीग फंक्शनल के 1 सेनेटर भी रिटायर हुए हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा आफरीदी के रिटायर होने के बाद सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का ओहदा खाली हो गया। इलेक्शन कमीशन ने 2 अप्रैल को सेनेट इलेक्शन कराने का ऐलान किया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तनख्वाह ना लेने का फैसला किया है। उनका कहना था कि ये फैसला मुल्क को दरपेश मौशी चैलेंजेस के पेश नज़र किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी तनख्वाह ना लेने का फैसला किया है। ट्वीट में उनका कहना था कि वो अपने ओहदे की तनख्वाह नहीं लेंगे। पाकिस्तान को कर्ज अदायगी और जारी अखराजात के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ेगा। कर्जों के बोझ से छुटकारा बड़ा चैलेंज है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि 80% कर्जे पिछली हुकूमत ने लिए हैं। मौशी तरक्की हमें प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करना होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज़म्स पर मुंतकिल हों। चूँकि पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है उसमें बहुत कम स्पेस है। इस वक्त जितना तरक्याती बजट है, जितना जारी बजट है, जितनी हमारी मुल्क की पेंशन है या दफाई बजट है, टोटल हमारा बजट कर्ज़ों पर चल रहा है। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत के बजट में कुल महासिल 7,000 अरब रुपए हैं और कर्ज़ों की अदायगी में ही 7500 अरब से ज़्यादा पैसे दरकार हैं, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ कर्ज़ों की अदायगी के लिए भी हमें अपने वसाइल से हटकर मज़ीद कर्जा लेने की ज़रूरत है। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं सियासी मुखालिफिन रमज़ान निगहबान पैकेज से काफ़ी परेशान हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पूरी कौम को रहमतों बरकतों का महीना मुबारक हो। रमज़ान निगहबान पैकेज आवाम को रिलीफ फराहम करेगा। हुकूमत ने अपने वसाइल से कम आमदनी वालों के लिए भरपूर इक़दाम शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पे फेक प्रोपेगेंडा, फेक खबरें चल रही हैं और सियासी मुखालिफिन जो है वो बहुत तकलीफ़ का शिकार है। इस रमज़ान पैकेज के हवाले से बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको और बजा तौर पर शायद दुरुस्त भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दौर में ना कभी कोई काम किया था, ना कभी आम आदमी को रिलीफ देने के बारे में उनके दिमाग में कभी ऐसा कोई फलाही प्रोग्राम आया जिसके ज़रिए 64 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों को उनकी दहलीज़ के ऊपर जो रमज़ान पैकेज है वो दिया जाए। कोई गलती है, कहीं कोताही है, वो ज़रूर आप बताएं, हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फेक प्रोपेगेंडा नहीं, सोशल मीडिया पे झूठी खबरें नहीं। स्पिरिट ये है इस प्रोग्राम का कि आपका हक आपकी दहलीज़ पर, हर आम आदमी को किसी कतार के बगैर, किसी इंतज़ार के बगैर उनको उनका हक जो है वो दहलीज़ पे दिया जाए। एक नया सर्वे पंजाब के लेवल के ऊपर 3 महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है, जिसके अंदर खुद ग्राउंड लेवल के ऊपर जाकर हर एक मुस्तहकीन की निशानदेही की जाएगी, उसका रिकॉर्ड मिलेगा और उस रिकॉर्ड के मुताबिक अब आइंदा से पंजाब हुकूमत जो भी कोई सब्सिडी देगी, जो भी कोई पैकेज, कोई प्रोग्राम देगी, वो उस जो है वो डाटा के थ्रू होगा। पहली अफ्तारी घर से बाहर। कराची में शहरी बड़ी तादाद में अफ्तार के लिए बर्न्स रोड पहुंच गए हैं। इस वक्त बर्न्स रोड के क्या मनासिर हैं जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। जी काशान, बताइए।
हाँ जी बिल्कुल, देखिए पहले रोज़ा को इफ्तार करने की तैयारियां जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। मार्केटों की रौनक जो है रमज़ान में वैसे दुबारा हो जाती है। मेरा कैमरामैन दानिश शकील आपको ये मनाजिर दिखाएंगे। गर्मा गर्म समोसे, पकोड़े, रोल और जलेबियां जो है वो यहाँ पर तैयार की जा रही हैं। शहरियों की एक बड़ी तादाद जो यहाँ पर मार्केटों में मौजूद है और हर शहरी यही चाह रहा है कि जल्द से जल्द वो इफ्तारी लेके अपने घर पर पहुँचे। जबकि हमारे साथ हमारा जो शहरी मौजूद है उनसे भी बात करेंगे कि रमज़ान शरीफ की आमद है और उसके साथ ही तैयारियाँ भी इसकी मुकम्मल कर ली गई हैं। फिर कुछ देर में जो है रोज़ा भी इफ्तार होगा, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत ज़बरदस्त एक गहमा गहमी है। पहला रोज़ा है और लोगों का एक हुजूम निकला है रोज़े को सेलिब्रेट करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कतार लगा हुआ है। समोसे जलेबी का डिमांड इस कदर बढ़ा हुआ है कि हम दे नहीं पा रहे हैं। और माशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि इस तरह के शब रोज़ जो इस तरह के रौनक और मेला जो है सजा रहे इस पाकिस्तान के टूर हॉल्स में इंशाल्लाह। जी आपने बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि दुकानदार भी ये कह रहे हैं कि मांग में इजाफा हो गया, वो दे नहीं पा रहे। नेक्स्ट टाइम जो है कल का जो रोज़ा होगा ये ज़्यादा मिकदार में बनाएंगे और शहरियों को इससे वो ज़्यादा फ़रोग करेंगे। जब तक कुछ देर में जो है कराची और उसके मज़ाबात में पहला रोज़ा जो है वो इफ्तार किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान। माह रमज़ान के आगाज़ से ही शैतानी वार शुरू हो गए। मुनाफाखोरों ने आस्तीनें चढ़ा ली। फल, सब्जियां, दालें और गोश्त सभी की कीमत आसमान छू रही है। शहरी बिलबिला उठे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। माह सयाम में मुनाफाखोरों की ईद पहुँच से दूर हो गई कुव्वत खरीद। गोश्त, दालें, सब्जियां और फल सब महंगे हो गए। माह रमजान में किचन का राशन हो, गोश्त के चटखारे या फिर फलों की मिठास, बढ़ती कीमतों ने फीकी कर दी। खरबूजा 200, सेब 300, अमरूद 200, केले 250 रुपए दर्जन, कीनू 300 रुपए दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। सब्जियों की बात करें तो प्याज 300, टमाटर 200, हरी मिर्च 320 रुपए किलो, आलू 80 रुपए, बंद गोभी 400 रुपए, अदरक 500 और लहसुन 650 में फरोख्त हो रहा है। महंगाई और गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई ना होने के बराबर है। खीरे है ना पहले 50 रुपए किलो, आज 120 रुपए किलो है। वो सेब थे मैंने पूछे, वो पहले 200 रुपए लिखा था, अब वो 300 350 रुपए किलो मांगते हैं। प्याज है वो गरीब इंसान की पहुंच से दूर हो गए, वो क्या करें। जो धड़ी लेते थे रमजान में वो किलो 2 किलो पे गुजारा कर रहे हैं। अवाम का कहना है कि हुकूमत ने बिजली और गैस के बिलों में जालिमाना इजाफा करके उनकी जिंदगी अजीरन किए रखी। अब महंगाई के नए तूफान ने दोहरी अजियत का शिकार कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। बहावलपुर में मुजरे सेहत खाना पीने की अशिया जब्त करके तल्फ कर दी गई। 343 किलो सामान गैर महफूज था। 112 एक्सपायर्ड अशिया फरोख्त के लिए रखी गई थी। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम के मुताबिक चर्बी से तैयार किया गया खुला ऑयल रमजान में पकौड़ों और समोसों की तैयारी में इस्तेमाल होना। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि गुजरांवाला में डाकुओं ने सुपर स्टोर लूट लिया। 2 मुसल्लह अफराद नकदी, मोबाइल फोन्स, घी के पैकेट्स और दीगर अशिया लूट कर फरार हो गए। फिरोजपुर वाला रोड पर वारदात की CCTV वीडियो जारी कर दी गई। मुसल्लह मुलजिमान को ग्राहकों से लूटमार करते भी देखा जा सकता है। CCTV की मदद से पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। और अब बात करेंगे गजा की। इसराइल को रमज़ान में भी रहम ना आया। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी रखी। सेहूनी हमलों में 24 घंटों के दौरान शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 72 हो गई। 100 से ज़ायद शहरी ज़ख्मी कर दिए। शहदा में फ़लस्तीनी फुटबॉलर मोहम्मद बरकत भी शामिल हैं। 7 अक्टूबर से जारी जारियत में शहादतों की तादाद 31,000 से तजावुज़ कर गई। शुमाली गजा, खान यूनुस और रफा में सेहूनी फोर्सेस ने फिर निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। इन हमलों में 65 अफराद शहीद और 100 से जायद जख्मी हुए। फलस्तीनी फुटबॉलर मोहम्मद बरकत ने भी जामे शहादत नोश किया। रमजान की पहली रात भी फलस्तीनियों ने आहों और सिस्कियों में गुजारी। बमबारी का निशाना बनने वाले इलाकों की तबाह हाल मसाजिद में ही शहरियों ने नमाज अदा की। गजा में शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत से मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए, जिसके बाद ग़िज़ाई क़िल्लत से शहीद बच्चों की तादाद 27 हो गई। इसराइली फोर्सेस ने मस्जिद अक्सा का मुहासरा बरकरार रखा, ताहम फलस्तीनी इसराइली पाबंदियों को खातिर में न लाए। शहरियों की बड़ी तादाद ने मस्जिद अक्सा में नमाज अदा की। दूसरी जानिब पनाह गुज़ीन कैंप्स में फलस्तीनी मसाइब और मसाइल दोनों का शिकार हैं। सहर व इफ्तार का इंतजाम मुमकिन नहीं। चूल्हे जलाने के लिए गैस है न तेल। कर्ब का अंदाजा इस बयान से लगाएं। इस जिंदगी से तो अच्छा था कि मैं इसराइली बमबारी में मारा जाता। आलम इस्लाम कहाँ है? अरब दुनिया कहाँ है? कोई हमारी फरियाद सुनने वाला नहीं। ऐसा रमजान कभी जिंदगी में नहीं देखा। फलस्तीनी पनाह गुज़ीन कहते हैं, आर्जी जंग बंदी का वक्त गया। मुकम्मल जंग बंदी करके हमें घरों में वापस जाने दिया जाए। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने माह रमजान में जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं, मुसलमानों का माह मुक़द्दस शुरू हो गया। अब गजा में खून रेजी बंद होनी चाहिए।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां PSL मैच में आसाब शिकन मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 2 रन से शिकस्त दे दी है। 148 रन का हदफ कराची किंग्स हासिल करने में नाकाम रही। कराची किंग्स PSL के प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। 10 मैचेस से 3 पॉइंट्स हासिल करने वाली दिफाई चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स का भी इवेंट सफर इख्तिताम पसीर हो चुका। बलूचिस्तान में बारिशों के नए स्पेल ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकानात गिर गए। PTMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक। गवादर समेत दीगर मुतासरा अजला में पाक फौज और ज़िला इंतजामिया की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। महकमा मौसमियात ने चमन से अरद पशीन कलात समेत दीगर अजला में मज़ीद बारिशों की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी, हर तरफ पानी ही पानी। कोयटा, मस्तूंग और गवादर में सैलाबी सूरत हाल। दर्जनों कच्चे मकानात गिर गए। PTMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक हुए। गुज़श्ता रोज बारिश के बाद पशीन, कुचलाक और नोशकी के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मस्तूंग के नदी नालों में रेलों का जोर बढ़ने लगा। चागी में कई मकानात की कच्ची दीवारें गिर गईं। रेलवे ट्रैक पर पानी आने से कोयटा तफ्तान सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ अजला में 258 मकानात मुकम्मल तबाह हो चुके। 1040 घरों को जुज़वी नुकसान, 4 सड़कें मुकम्मल तबाह और 1 पुल सैलाबी रेले की नजर हो गया। गवादर समेत दीगर मुतासरा अजला में पाक फौज और जिला इंतजामिया की इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। महकमा मौसमियात ने आज भी कोयटा समेत मुख्तलिफ अजला में मजीद बारिशों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की है। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।